Okay, so I think in last 2 or 3 sessions or 2 or 3 lectures, we have started the first case. So what is that first case? The eigen. So let me just add that case. Okay. So that you will find the difference between this case 1 and case 2. So case 1, where all our eigenvalues are distinct. Okay, all eigenvalues are distinct. This is our first case. Okay, and now let me start the second case. तो आप देखो यहाँ पे इन सारे एग्जांपल्स में जितनी मैट्रिक्स की ऑर्डर थी उतने आपके पास आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रहे थे, है ना. सो ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज. इफ यू ओके, सो ऑर्डर इज नथिंग बट number of eigenvalues. This is our first case. Okay, so the first example, 2 by 2 matrix, order 2, eigenvalues are also 2, distinct eigenvalues are 2. Second example, okay, order 3, distinct eigenvalues are -2, 3 and 1. Okay, next is question number 3. Order 3, distinct eigenvalues are 4, 2 and 1. Okay, like that. So and I will start with the next case. Okay, so let me take this on the next page. Okay, this is the case where the eigenvalues are in repetition. So only 2 cases are there where the eigenvalues are in repetition. Okay, so let's discuss this case. So first example is let A is equal to 2 0 0 1 2 0 0 0 minus 1. Here you can see this matrix is in upper triangular form. Okay, you can find a triangle here. Okay, therefore this matrix is in upper triangular form. So what is the result? Yes, any problem? Sir, if eigenvalues repeated, then you say that the second row may be 0 or may not be 0. No, Is it correct? it is for eigenvectors, not eigenvalues. It's for eigenvectors. Eigenvector. So there is no such a criteria if you talk about if you consider the eigenvalues. Eigenvalues के लिए ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है. मतलब मैट्रिक्स देख आप कोई भी कंक्लूजन नहीं कर पाओगे. Okay, so eigenvalues are totally depend on your characteristic equation. जो ये इक्वेशन आप कैलकुलेट करते हो ना, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस सम ऑफ द माइनस माइनस डिटरमिनेंट. ओके, वो जो आपका इक्वेशन है उस पे ही सारे आपके आइगनवैल्यूज डिपेंड है. करेक्ट? यस, व्हाट इज दैट कैलकुलेशन? लास्ट लेक्चर में बनाना होता सर. नो ओके, मे बी बाय मिस्टेक लेक्चर में काय सांगितलं होतं. हां, नहीं, नॉट फॉर आइगन वैल्यूज. आइगन वेक्टर्स का एक रिजल्ट है जो मैं आपको बोलता हूँ अभी. ये जब एग्जांपल हो जाएगा ना, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. सी, अभी तक के सारे क्वेश्चंस में देयर आर 3 आइगन वैल्यूज और कितने आइगन वेक्टर्स मिल रहे थे? इन ऑल आवर प्रीवियस क्वेश्चंस देयर आर 3 आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. और आपको कितने आइगन वेक्टर्स मिल रहे थे? 3. मतलब क्या? इट मींस व्हाट? Corresponding to every eigen value you can find eigen vector. But अभी मैं केस कौन से लेने वाला हूँ? If there are only 2 distinct eigen values, then what is your conclusion? Correct ना? ये इस पे मैंने डिस्कस किया था. Okay, so you will come to know from this example also. So if there are 2 distinct eigen values, or if there are 1 distinct eigen value, means so if all 3 are in repetition.
ठीक है, तो ये तीनों केसेस हमें डिस्कस करने हैं. ओके, और इस केस में कितने Sir, हाँ बोलो ना. and sir, in the last lecture you also discussed that if any two diagonal elements are same, then we can directly use those as eigen values. I mean, for That lambda. result, that result I noted If No, no, down. if there is upper triangle. Yes, this is the result. If your given matrix is in upper triangular form or in lower triangular form, or if it is a diagonal matrix, there are all three. क्योंकि आपको पता upper triangular, lower triangular is nothing but diagonal matrix. Okay, sorry. yes, sir. Every diagonal matrix is a upper and lower triangular matrix. This is the result, है ना? So So sir, that means there is a condition, right, sir, that it should be upper triangular, lower triangular matrix. Then only we can apply that result. yes, That yes. diagonal elements If are. given matrix is in upper triangular form or in lower triangular form, then only you can apply this result. Otherwise, you have to prove the characteristic equation. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ. Yes, got it, sir. ठीक. तो ये तीनों केसेस बेसिकली हमें डिस्कस करने हैं. ओके, सी एट द एंड इसके डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको पता है, बट मैं रिवर्स वे से जा रहा हूँ. पहले मैं हर एक केस का एग्जांपल लेता हूँ, फिर वो जो रिमार्क्स है ना जो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं नीचे, आप देखो, क्योंकि ये रिमार्क आपको तभी समझ में आएंगे. ठीक है, हर एक रिमार्क का एग्जैक्ट मीनिंग आपको तभी समझ में आएगा. सो दैट्स व्हाई मैं रिवर्स जा रहा हूँ. ओके, अभी मैं हर एक केस पे एग्जांपल लेने वाला हूँ. हमारी जो फर्स्ट केस थी where we have three distinct eigen values, we always get a three distinct eigen vector. तो अभी आप ये रिजल्ट फिट करो दिमाग में कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स मिल रहे थे. नाउ मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 बाय, ये सारा 3 बाय 3 के लिए चल रहा है. नाउ मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 बाय 3 है, बट इफ वी हैव टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है कि उस केस में हमें कितने आइगन वेक्टर्स मिलते हैं. ओके, वेदर वी गेट टू आइगन वेक्टर्स ओनली और वेदर वी गेट 3 आइगन वेक्टर्स. सो दैट वी हैव टू फाइंड हियर, एंड सेम फॉर वन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. सो वन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए मतलब तीनों आइगन वैल्यूज अगर रिपीटेशन में आते हैं 1 1 1, तो उस केस में आपको एक आइगन वेक्टर मिलने वाला है, वेदर वी गेट 2 वेदर वी गेट 3. सो दैट वी हैव टू फाइंड. ओके 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 सो ओके, ये समझ में आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन करना है. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड इफ यू फाइंड इट्स रूट्स, सो द रूट्स आर -1 2 2. ओके, तो आपको क्या, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस, दोज रूट्स आर नथिंग बट योर डायगोनल एलिमेंट्स. तो इसलिए मैंने एक आपको रिजल्ट भी दिया था. इसके बाद इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और lower triangular matrix, your eigen values are nothing but elements on the diagonal. तो अगर एग्जाम में एमसीक्यू एग्जाम बेस हो या थ्योरी एग्जाम बेस हो, किसी भी एग्जाम में अगर आपको मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देता हूं, तो आपको इस वे से जाने की जरूरत भी नहीं. आप डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख सकते हो, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर eigen values are the diagonal elements. Then you can directly mention those eigen values. No need to apply this result. Clear now? This is only for, this trick is only for upper and lower triangular matrix. Okay, and for diagonal matrix obviously. ठीक है. Okay, क्योंकि ऐसे एग्जांपल में एमसीक्यूज में आपको देने ही वाला. ओके, जहां पे मे बी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये मैट्रिक्स दूंगा. ओके, 1 मार्क के लिए, एंड व्हाट आर द आइगन वैल्यूज. 1 मार्क के लिए आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप इस वे से करते हो, दैट मींस यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखने. हर एक ट्रिक पे मैं ज्यादा फोकस करने वाला क्योंकि उस पे ही एमसीक्यूज रहेंगे. स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस पे कभी एमसीक्यूज नहीं आते. ओके, रिमेंबर ऑल दिस. या सो आई थिंक ये पार्ट सबको क्लियर है. ओके, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केस में आइगन वैल्यूज आपके डायगोनल के एलिमेंट्स ही आते हैं. नाउ लेट मी फाइंड द आइगन वेक्टर्स. ओके, सो केस 1. So here in this case you can see actually there are only two distinct eigen values. तो आपको दो ही केस में कैलकुलेशन करना है, एक तो -1 के लिए और एक तो 2 के लिए. तो दो ही केस में आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आने वाला है. ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट फाइंड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू -1. ओके, जो डिस्टिंक्ट है उस पे पहले फोकस करते हैं, क्योंकि -1 इज नॉट इन रिपीटेशन. ठीक है, सो लेट कैपिटल X which is equal to x1 x2 x3 be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to -1. Okay, can anyone tell me what is our next statement then what it implies? A minus lambda I
is equal into to x equal to 0. 0. This I can write it as lambda is minus 1, so a plus I times x is equal to 0. इसका मतलब क्या होता है, आपको a मैट्रिक्स का जो डायगोनल है उसमें +1 ऐड करना है, ठीक है. सो दिस इज योर मैट्रिक्स. सो a मैट्रिक्स जो था आपका, उसके डायगोनल में आपको +1 ऐड करना है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज योर फर्स्ट रो? 130 130 130 +1 ऐड करना है. 0 हाँ, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. हाँ, सो हाँ सर 300 हाँ. 300 1 300 then 130 then 0 0. Okay. 0 Yes, done. Into x1, x2, x3 is equal to 0, 0, 0. Okay. Now you can directly consider the augmented matrix and you can solve this system. Okay. So consider, okay, augmented matrix which is 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0 and this 0 column. Okay, augmented matrix का क्या होता है, आपको ये कॉलम यहाँ पे ऐड करना है. Now you can perform can interchange R1 row with R2 row if you want. नहीं करना है तो भी डायरेक्टली कर सकते हो. So here I will get 1, 3, 0, 0, then 3, 0, 300 and your last row is 0. So 0, 0, 0, 0. Then your next operation is okay. Next operation is you can this is your first non-zero number. Okay, नीचे के सारे एलिमेंट्स आपको 0 करने. So operation on R2 is R2 minus 3 times R1. Okay, just 1 minute. Then this become there is no change in first row. 1, 3, 0, 0. So this minus 3 times this क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 0 है ना. Next minus 0 and minus 9 -9. Okay, 0, 0 and last row is 0. So this matrix is in echelon form now. Okay, upper triangle form में आ गया. So which is in echelon form, which is in echelon form. It means you can write its rank. So rank of this augmented matrix, which is always equal to rank of A, क्योंकि last column 0 column है, and which is equal to 2 and which is less than the number of variables which are 3. Therefore, given system has infinite solution. Okay, so you can rewrite, you can find that infinite solution, and for that you have to rewrite that linear system from this final echelon form. So what will be your first equation? x1 plus 3. Sir, x plus 3 बोलो. sir, even though we know that the result will be always an infinite solution, still you Yes. have to mention it in the exam, sir. Okay. Yes, in case of theory exam you have to mention. MCQ में आपको पता है कि आप कहाँ तक जंप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, तो MCQ में ना, MCQ के लिए जब आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करोगे ना, ये इन बिटवीन ऑपरेशन लिखना ही नहीं है. डायरेक्टली ये देखा ना, आपको पता नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, ये देखा ना, आपको पता नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी. मतलब ये तीनों मैट्रिक्स में आपको आंसर समझ में आ जाएगा. सो MCQs में, हाँ, अभी आपको कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी आपसे क्या साथ शेयर किया है. सो फ्रॉम दैट आल्सो विल कम टू नो कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं. बट सारे एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आर ड्राफ्टेड बाय फैकल्टी. ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस आर ड्राफ्टेड बाय फैकल्टी. मतलब न्यू थॉट हो सकता है वहां पे. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. फिर कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको पता है वहां पे कैसे करना है. उसके लिए अगर आप 2-3 एग्जांपल सॉल्व करते हो ना, फिर जंप कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा. एंड आई थिंक यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट जोन, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना अभी आप ज्यादातर आपने वही प्रैक्टिस की है. ठीक है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. बट क्योंकि क्या होता है, हर एक स्टेटमेंट लिंक होता है. मतलब ओके, फॉर एग्जांपल ये मैं व्हेन आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट रैंक is equal to 2 when I can write this statement if that matrix is an echelon form. इसलिए मुझे ये ऊपर लिखना पड़ता है. ठीक है, अगर ये मुझे मिल रहा है, then what is my conclusion? Given system has infinite solution. Okay, so हाँ, तो आप लिख सकते हो ऐसा भी इतना, बट आपको echelon form में कन्वर्ट करना ही पड़ता है ना. अगर आपने लिखा भी this system has infinite solution, चलो
which is not at all wrong. But आगे आप उसको solve नहीं कर पाओगे ना until and unless this matrix is in echelon form. समझ में आ रही है क्या प्रॉब्लम है? No, sir. I'm not concerned about हाँ I'm converting it into the echelon form. I was asking about that. We have to write that statement given system has infinite solutions always. But I got your point. यस 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 नहीं भी लिखा तो आई डोंट थिंक सो कि उस पे आपके मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो रिजल्ट है वो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट सब में आ ही जाते हैं, मतलब इस सिस्टम में इस पूरे एग्जांपल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता ही है। तो अगर आपने नहीं भी मेंशन किया तो आई डोंट थिंक सो कोई फैकल्टी आपके वहां पे मार्क्स कट करेगा, नॉट एट ऑल, ठीक है। बट क्योंकि Yes, sir. मेरा अप्रोच क्या रहता है, जो हमने फर्स्ट यूनिट में किया है मैं सेम अप्रोच से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपका एक्सप्लेनेशन मे बी योर एक्सप्लेनेशन मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, ओके। बट एट द एंड यू हैव टू लिंक दोज स्टेटमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप कर सकते हो, आप जब भी कर सकते हो, बट एट द एंड जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हो प्रीवियस स्टेप से उसको लिंक करते जाना है, दैट इज ओनली व्हाट आई वांट, ओके। So this is your first equation. Second is minus 9x2 is equal to 0. So here there are only two equations. And how many variables? There are 3 variables. ये डिफरेंस भी हमेशा क्या आता है पता है क्या? ये इन दोनों का डिफरेंस ही आता है, आपको बाद में समझ में आएगा, ओके। दैट पार्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। देयर इज वन फेमस थ्योरम as far as this eigenvalues and eigenvectors are concerned, which is called as rank nullity theorem. Rank nullity theorem ये एक फेमस थ्योरम है, ओके। आपको वो सिलेबस में नहीं है, दैट कम्स अंडर प्योर मैथमेटिक्स, ओके। तो इसलिए ये डिफरेंस हमेशा वही आता है जो इनका आता है, आपको समझ में आएगा बाद में भी, ओके। सो बोलो, सो योर डिफरेंस इज वन, Difference is नंबर ऑफ one, sir. इक्वेशन और नंबर ऑफ One, वेरिएबल्स sir. में डिफरेंस 1 आ रहा है। इट मींस आपको किसी एक वेरिएबल को असाइन करना होगा। सो इफ यू सॉल्व दिस सिस्टम, We can consider x2 as t. यस x3 equal to t, sir. यस, क्योंकि यहाँ से x2 0 मिल रहा है, बट इफ आई पुट हियर you will get x1 is also I'm 0. sorry. So you can't assign x1 and x2 as t. So only choice is you have to assign x3. Let assign x3 is equal to t. Done. Therefore your eigenvectors. Can you tell me directly what is your eigenvectors? X is equal to 0 0 0 0 1. t की जगह पे 1 रखो directly. Is the eigenvector corresponding to lambda is equal to -1. Okay. So अभी जो नेक्स्ट केस लेने वाला हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी रैंडम एग्जांपल लिया था, बट ये जो नेक्स्ट केस है अभी वो आइगन वैल्यू रिपीटेशन में है। तो रिपीटेशन में अगर आइगन वैल्यू आती है तो क्या होगा, ओके, व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, सो दैट विल सी नाउ। सो नाउ लेट मी कैलकुलेट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 2, ओके। सो नाउ केस सेम ही आ रहा है eigenvector. क्या हो रहा, केस 2, eigenvector वो lambda is equal to 2 के लिए भी सेम आ रहा है. okay, which is not possible I guess. एक मिनट, अभी -1 के लिए क्या आ रहा था, -1 इज, हाँ ओके, -1 के लिए करेक्ट, आई डोंट थिंक सो, बट देखते क्या है, वाई क्योंकि एक रिजल्ट है, मैं बोलता हूँ बाद में, ओके। सो लेट मी सॉल्व, लेट x1 x2 x3 be the eigen vector corresponding to lambda is equal to 2, okay. Therefore we can write a minus lambda I times x is equal to 0. Therefore we can write a minus 2 times I times x is equal to 0. It means आपको a मैट्रिक्स से एक का जो डायगोनल है वहां से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, from diagonal elements of A we have to subtract 2, okay. So what is your first row, 0 0 0, second row is 1, Sir 0 0 0. हाँ, तो आपने देखा ना, मुझे बोलो 0 0 0 1 0 0, हाँ, first row is 0 0 0, next is 1 0 0, लास्ट में क्या होगा, 0 0 minus -3 ना, क्योंकि वहां पे -1 था, है ना, -1 है ना, so -1 -2, clear or not? yes. Okay. Yes, sir. हाँ, so यहाँ पे 2 2 -1 था, बाकी एलिमेंट सेम ही है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 एंड -3 एंड इनटू दिस x1 x2 x3 which is equal to 0 0 0. Okay, now let me consider the augmented matrix. Okay, so consider augmented matrix which is 0 0 0 1 0 0 0 0 -3. ओके, सो अभी एक्चुअली है ना, ये मुझे ये रो मुझे फर्स्ट रो में चाहिए और ये मुझे सेकंड में चाहिए और ये लास्ट में चाहिए, तो मैं इतने सारे मुझे 2 बार ये करना होगा. ओके, तो कैन आई राइट डायरेक्टली नाउ? यस सर. अभी समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है? एट द एंड यस सर. मेरा पहला ये मुझे लास्ट में चाहिए ना, तो मे बी आप पहले क्या करो, इंटरचेंज फर्स्ट विद थर्ड, तो ये ऊपर जाएगी रो. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट विद सेकंड करना होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट मी राइट इट. यस सर. यस सर. थ्योरेटिकली अगर आप लिखते हो तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंटरचेंज R1 विद R3, ये पूरा कंप्लीट करो. उसके बाद आप करोगे R1 इंटरचेंज विद R2, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ये मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जा रहा हूं. 1 0 0 0 0 0 -3 0 and 0 0 0 0. क्लियर? सी आपकी पहली एग्जाम थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम है. Yes, sir. So if you write like this, you will reduce your marks. But I will reduce your marks. तो ये पहले आप इसका मैट्रिक्स आपको लिखना होगा कंपलसरी. इसका मैट्रिक्स आपको ये आ जाएगा फिर. ओके, तो अभी मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि नाउ आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद द रो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, नाउ आई कैन जंप, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे बोलो, मैं जंप करना छोड़ दूंगा. आई विल सॉल्व इन डिटेल. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू राइट दैट मैट्रिक्स. ओके, बट मुझे दोनों में से जाना है. एट द एंड मुझे ये भी एक्सप्लेन करना है क्योंकि एक ही एग्जाम होने वाली है थ्योरी, उसके बाद तो सारे एमसीक्यूज ही है. तो ऐसा ना हो कि मैं आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं और आपको एमसीक्यूज में पेपर ही कवर नहीं हो रहा है. आई थिंक मे बी सम स्टूडेंट्स फाइंड अ प्रॉब्लम इन दैट यस्टरडे एग्जाम. हो रहा है कवर आपको पेपर इजीली कवर हो रहा है? And I felt that, sir, हाँ. paper was a bit lengthy. I mean, उससे भी लेंदी होगा Time was not फाइनल sufficient. एग्जाम में, उससे भी लेंदी होगा फाइनल एग्जाम में, इतना याद रखो. ओके, सो आई विल टेल यू कि उसको कैसे हैंडल कर सकते थे आप. ठीक है, देयर आर फ्यू रीजन दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट. ओके, एक जो रिजल्ट था उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था बिकॉज़ आई वांट टू चेक व्हाट इज योर थॉट बिहाइंड दैट क्वेश्चन. ओके, वो रिजल्ट आपको पता है ऑलरेडी, बट शायद आपने उसको कनेक्ट नहीं किया, स्पेशली फॉर लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. उसको आपने कनेक्ट नहीं किया होगा. बट ओके, बट आई विल टेल यू कि कैसे उसको अप्रोच करना था. ठीक है, आई विल टेल यू. इसलिए मैंने sir, you mean, बोलो ना, बोलो. sir, मतलब सिर्फ इंटरनल इवैल्यूएशन के जो भी एग्जाम्स हैं सर वही थियोरेटिकल रहेंगे सर. ओनली आई बाकी सारे एमसीक्यू बाकी अभी हाँ, सी I1 का टोटली फैकल्टी के हाथ में है, तो फैकल्टी में एट द एंड एक इंटरनल इवैल्यूएशन की एग्जाम आपकी थ्योरेटिकल होगी. ओके, दैट इज फाइनल. Yes, sir. बट ऐसा हो सकता है कि आपकी जो सब 5 सब्जेक्ट है उसमें से मैथ्स की थ्योरी होगी अभी. ओके, बाकी सब्जेक्ट की ऑनलाइन होगी. फिर नेक्स्ट आई के टर्म में बाकी सब्जेक्ट की थ्योरी होगी और हमारी ऑनलाइन होगी. सो एट द एंड एक I1 का जो टर्म होगा वो थ्योरी बेस होगा और एक ऑनलाइन होगा. बाकी तो सारे एग्जाम आपके ऑनलाइन है. ठीक है, क्लियर ना? व्हाट इज द पैटर्न? Yes, sir. सो इट डिपेंड ऑन द फैकल्टी. Yes, sir. मैं अभी एग्जाम भी ऑनलाइन. And sir, the MT and the ET examinations, they will be MCQ, right? yes, they will be MCQ based. So at the end your more focus is for MCQ. More focus is for MCQ. Yes, sir. ठीक है. Yeah. So this matrix directly converted into echelon form without any operation, just by interchanging rows. Okay. ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली आते हैं MCQs में. मैं ऐसे रैंडम नंबर दूंगा, आपको बस इंटरचेंज करके उसको echelon form में कन्वर्ट करना है. So just by interchanging first with third, first with second, you will get this echelon form. Okay. So which is the echelon form? Okay. So therefore rank of this matrix which is equal to rank of A which is equal to 2 which is less than number of variables which are 3. Therefore system has infinite solution. So to calculate that solution we have to rewrite this linear system. So x1 is equal to 0 and minus 3x3 is equal to 0. Correct?
Yes, sir. So there are Yes. two equations, there are three variables, so difference is 1. तो एक वेरिएबल को कंपलसरी आसान करना है, बट यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 0 आ रही है, so what is your choice? Then you can assign X x2 equal as to T equal to t, 1. है ना, where t belongs to R, therefore your eigenvector, so x is equal to बोलो 0 0. 0 1 0. This is the Yes, sir. eigenvector. 0 1 0. This is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 2. हो गया क्वेश्चन. So what is your final conclusion? अभी आप मुझे बोलो. What is your final conclusion? There are 3 eigenvalues, but how many eigenvectors you got here? 2, sir. 2 only. Sir. Okay. So let me write this conclusion here somewhere. Okay. So corresponding to these 2 distinct eigenvalues, अभी मुझे कितने मिल रहे हैं? Here I get only 2 eigenvectors. ठीक है. मुझे ना वो एग्जाम्पल आप बुक में आप एग्जाम्पल देखो कोई भी, उसमें जो आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, ओके, रिपीटेशन के करस्पॉन्डिंग आई वांट 3 आइगन वेक्टर्स, ऐसा कोई एग्जाम्पल कैन एनीवन फाइंड इसको एडजस्ट करने में ना, ठीक है, किसी के पास बुक अभी इमीडिएटली Yes, sir. ऐसा कुछ तो टाइटल होगा, मतलब रिपीटेशन के करस्पॉन्डिंग आपको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल रहे हैं. आप मुझे एग्जांपल बोलो, मैं क्विकली चेक करता हूं एंड देन विल स्टार्ट द एग्जांपल इन डिटेल. बोलो. Sir, 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 9. 3 6 9. ओके. सर हाँ बोलो ना. सर ये केस 2 में क्या अलग था, मुझे नहीं समझा. Okay, let me clear that point first. Okay, how many eigenvalues are there? 3. But distinct Three. कितने थे? Distinct eigenvalues 2. 2. ठीक है. हाँ. अब इससे पहले सारे क्वेश्चन में क्या हो रहा था? 3 distinct eigenvalues, 3 distinct eigenvectors. ओके. अभी आप Yes. अगर आपका अभी कंक्लूजन शायद ये होगा कि सर जितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है उतने आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं. मे बी अभी आप उस कंक्लूजन पे हो, करेक्ट ना? हाँ सर. इसलिए आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका फाइनल कंक्लूजन अभी मुझे मेरे पास क्या आ रहा है कि सर जितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रहते हैं उतने आइगन वेक्टर्स मिलते हैं. अभी मुझे आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जहां पे 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रहेंगे बट वहां पे 3 आइगन वेक्टर्स मिलने वाले. आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. 2 के करस्पॉन्डिंग आगे जाके मुझे 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे 2 आइगन वेक्टर मिलने वाले हैं. इट मींस वहां पे जो डिफरेंस होगा ना, ये जो डिफरेंस अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे 1 आ रहा है ना अभी तक, वो डिफरेंस हाँ. आपका आने वाला है 2. ठीक है. अभी ये ना नीचे चला जाए क्या इसके. पर अगर हाँ. सर अगर जो सेम केस है सर, तो सर सारी कैलकुलेशंस भी सेम होंगी सर, तो कैसे आएंगे आ मतलब जाएगा. 3 डिस्टिंक्ट आएंगे? आ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम्स क्या है. मुझे सुना पे ऐड करता. ओके. तो सर 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए थ्री डिस्टिंक्ट है ना, तीनों डिस्टिंक्ट है ना, तो 3 आइगन वेक्टर कंपलसरी मिलेंगे उसमें, उसके बाद आप जा ही नहीं सकते. बट तीनों में से और अगर 2 एक, होगा तो हाँ, अगर एक आइगन वैल्यू रिपीटेशन में आ रही है, मतलब अगर आपके पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है ना, तो आइगन वेक्टर 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं. 2 का मैंने एग्जांपल लिया अभी, करेक्ट? हाँ हाँ. हाँ. अभी मुझे सेम चाहिए बट उसमें 3 आइगन वेक्टर्स आने चाहिए. तो बुक में ना कहीं पे वो एग्जांपल होगा जहां पे आप सॉल्यूशन में देखो, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में देखो, मे बी हियर इन दैट केस यू कैन एक्सरसाइज में देखो, वहां पे एक आइगन वैल्यू रिपीटेशन में आ जाएगी बट उसके सॉल्यूशन में आइगन वेक्टर्स तीनों रहेंगे. ऐसा कोई एग्जांपल आप मुझे बोलो फ्रॉम अ बुक. ओके सर. हाँ, फाइंड इमीडिएटली और मुझे बोलो. We'll check and then I will explain in detail. Sir, A is equal to
बोलो। सिंपल 1 1 2 2 3 3 1 2 3 ओके हाँ 2 4 6 ओके हाँ ये पहले था, हाँ बोला अभी फिर 2 4 6 हाँ और सेकंड 3 सेकंड 6 9 3 6 3 6 9 9 ओके। इसके आगे वैल्यूज क्या आ रहे थे? सॉल्यूशन होगा ना वहाँ पे। हाँ 0 0 14 0 0 14 हाँ ओके 14 ओके सिंपल ले लो ना कोई भी, नहीं क्या उसमें और कोई सिंपल, ये नंबर इतना लार्ज नहीं चाहिए हमें, हो जाएगा ये बट अगर कोई सिंपल है तो वहीं पे रहेंगे ना सारे क्वेश्चंस। कैन यू टेल मी अ सिंपल एग्जांपल? yes sir हाँ बोलो। 2 1 1 बोलो नेक्स्ट 2 1 1 नाही सर कॉलम मध्ये आहे. 2 1 1 जल्दी बोलो हाँ 2 1 1 फर्स्ट कॉलम 2 1 1 नेक्स्ट कॉलम yes 2 3 2 यस 1 1 2 1 1 2 आइगन वैल्यूज क्या थे इसके? आइगन वैल्यूज 1 1 5 ओके ओके तो अभी मैं रफली कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एग्जांपल देखना पड़ेगा कि उस केस में कौन सा एग्जांपल है। तो आइगन वैल्यू 1 लेके मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो डिस्टिंक्ट है ना उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा एक मिलता है, बट अगर वो रिपीटेशन में है तो जितने बार वो रिपीट हो रहा है उतने आइगन वेक्टर्स मिलते हैं या एक ही मिलता है। नाउ पॉइंट समझ में आ रहा है क्या पुट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके हाँ तो 1 के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा? 1 2 1 1 2 1 1 2 1 मैंने बस 1 सब्ट्रैक्ट किया है। ओके फिर ये तीनों इक्वल है। ओके करेक्ट गुड हाँ चलो डन। राइट डाउन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखो और साथ में सॉल्व करना है हमें। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ A is equal to, can you tell me that matrix again? Okay yes sir हाँ बोलो। कॉलम में 2 1 1 यस 2 3 2 1 1 2 1 1 2 ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। करो स्टार्ट, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करो। ये छोड़ो जो मैंने आपको दिखाया था, हमें एक्चुअली चेक करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। यस so in solution, so first of all we have to consider the characteristic equation. So consider characteristic equation. So what is that general formula? Lambda cube minus trace of a, आपके लिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, प्लस सम ऑफ द माइनस m11 m22 m33 टाइम्स लैम्बडा minus determinant of a equal to 0. So that is lambda cube. ट्रेस क्या है यहाँ पे? 4 7 correct? 7. Yes, sir. Can you tell me just these values m11 m22 m33? m11 is 6 4. minus 4. Yes. 4. m22 is 3. 3. 3. Correct. m33 is 4. Okay. Again 4. And lambda is 4. determinant is, do it on 5. 5 na? 5. Okay, so therefore you will get lambda cube minus 7 lambda square, 12 lambda, sorry, okay 12 minus 5 is equal to 0. Karana, sorry. Yes. Now calculate its roots. Tell me its roots.
ओके, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको अभी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं आ रहा है? विदाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यू आर जीरो इन दिस यूनिट, रिमेंबर माय पॉइंट. विदाउट 115. ठीक है, इसके बाद इमीडिएटली चेक करो वेदर दिस वैल्यूज आर करेक्ट. इनकी जो सम आ रही है वो क्या आ रही है? 5 6 7, यानी आपको ट्रेस भी पता है 4 + 3 7. ठीक है, तो इट मींस आपका आंसर करेक्ट है. उसको फिर से कैलकुलेशन दोबारा चेक करने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है, सो दिस आर माय आइगन वैल्यूज. ओके, सो लेट मी फर्स्ट फाइंड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 5, क्योंकि एक तो मुझे मिलने वाला है 5 के करस्पॉन्डिंग. ओके, सो केस 1. सो लेट कैपिटल X कैलकुलेट करो जिनको आता है अभी. x1 x2 x3 be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 5. ठीक है, therefore a minus lambda I x is equal to 0. therefore a minus 5 times I times x is equal to 0. मतलब डायगोनल से 5 सबट्रैक्ट करना है. तो क्या मिलेगा? What is your matrix? बोलो. You have to subtract 5. So minus 3. Sir, 1 2 1. No, 2 minus 5 ना. Okay. -3 Minus 2 1 3 2 1. Then 1 1 -2 minus 2 -2 1 1. Then 1 2 minus 3. 1 2 -3. Okay. Yes sir. Into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. करो कैलकुलेट आगे एंड टेक मी योर फाइनल आइगन वेक्टर्स. सो नाउ आई विल डायरेक्टली, अभी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ. हाँ, तो मुझे ये रो ऊपर चाहिए 1 - 2 1, है ना. सो लेट मी राइट इट डायरेक्टली. 1 - 2 1, इसको मैं इसके साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ. -3 2 1 एंड I will keep this third row as it is. Correct है ये? Yes? Correct or not? Now I will write all the calculation without mentioning any operation. है ना? Second को मैंने first लिखा है और मैं ऐसे कर रहा हूँ. Correct or not? Check करो आप. Correct. Yes sir. हाँ. Then I will keep my first row as it is, क्योंकि मुझे इसको इकोनॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो जस्ट टेल मी द सेकंड ऑपरेशन. सो -3 + 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो 0 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो -6 + 2. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट 3 + this 4. करेक्ट. नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है. 0 क्या आ जाएगा? ये 4 -4. Correct ना? So this I can write it as, can I write this directly as yes or no? आप मुझे बोलो, आप ऐसे लिख सकते हो क्या? अभी ये आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसे? हाँ, तो ये जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. Yes sir. इफ यू अंडरस्टैंड, मतलब अगर आपको अभी कंसेप्ट क्लियर है, सो मैंने 3 मैट्रिक्स के कैलकुलेशन में पूरा कैलकुलेशन फिट किया है. So this is expected when you solve this example in for MCQ, या MCQ में अगर आप कहीं पे सॉल्व कर रहे हो, या आपको इमेजिन अभी होना चाहिए. इमीडिएटली नहीं आता किसी को भी. ठीक है, जब आप ये एग्जांपल सॉल्व करते हो आपको पता है मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, फिर मैं इनको ऐड कर दूंगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा. ठीक है, सो इस टाइप से अभी आप इसकी भी प्रैक्टिस करो और थ्योरेटिकली प्रॉपर कैसे लिखना है वो भी आपको अभी समझ में आना चाहिए. नाउ अभी आपको पता है कि Okay, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. रैंक ऑफ दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 विच इज लेस दैन नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर 3. देयरफॉर सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. नहीं लिखा तो भी चलेगा जब आप एमसीक्यू कर रहे हो तो. ओके, सो व्हाट इज माय फर्स्ट इक्वेशन? x1 - 2x2 + x3 is equal to 0 and -x2 + x3 is equal to 0. There are 2 equations only, but 3 variables are there,
एंड दिस डिफरेंस इज 1, तो मुझे किसी एक वेरिएबल को असाइन करना होगा. सो व्हाट इज दैट वेरिएबल? कोई भी एक बोलो. लेट x2 असाइन. और x3. x2 और x3. हाँ, सो लेट मी असाइन x3. चलो जो इजी है वो. ओके, सो वेर t बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज योर x2 इज t. व्हाट इज योर x1? t x1 भी t आ रहा है क्या? प्लस 2 minus 3t sir. Minus 3t. x1 ना. ओके, लेट मी चेक. सो x1 इज 2t minus Yes, sir. t. Yes, So it is t, na? T. So all values are t. और t, yeah. Yes. So what is your eigenvector? Can you tell me? 1 One, 1 1. ठीक है? 1 1 1. Is the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 5. ये इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन आता ही नहीं कभी. ये सिस्टम को जो कैलकुलेशन है वो इतने डिफिकल्ट रहते ही नहीं. ठीक है. नाउ लेट मी फाइंड eigenvector corresponding to 1. अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो केस 2. So let capital X is equal to x1, x2, x3 be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 1. Okay, so therefore a minus lambda I times x is equal to 0, that is a minus I times x is equal to 0. तो आपको 1 सबट्रैक्ट करना है डायगोनल से. Sir, 1 to 1. Sir, all rows are same, sir. ओके, To सो कैन यू टेल मी? Yes. एक मिनट. 1 to 1. All rows are 1 to 1. 1 to 1 ना. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो टाइम्स x1, x2, x3 is equal to 0 0 0. Okay, now consider the augmented matrix. So consider augmented matrix which is 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0. अभी मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ. कैन यू टेल मी द फाइनल इक्विवेलेंट फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू दिस? Sir, 1 to 1 and all zeros. Okay, and all the remaining rows are 0. Done. तो ये डायरेक्टली इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया है. अभी आप यहाँ पे चेक करो. ओके, सो what is the rank of this matrix? Rank of augmented matrix which is Rank equal is to one. rank of A, which is 1 and which is less than number of variables which are 3. Okay, so system has infinite solution. So what is that infinite solution? x1 plus 2x2 x3 equal to 0. Okay, now focus here. Stop your writing अगर आप कुछ कर रहे हो तो. इसके आगे आपको अभी तक मैंने explain नहीं किया. Okay, so how many equations are there? How many equations are there? One equation. One. And variables are 3. So this difference is 2 here. तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंस 2 मतलब क्या करना होगा आपको कंपलसरी? Sir, two variables को. टू वेरिएबल को आपको असाइन करना होगा. आपको भी समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एक वेरिएबल को असाइन आप अगर आप कर भी लेते हो, x3 को अगर आप t असाइन कर दो, कैन यू फाइंड x1 एंड x2? No, sir. नो, है ना? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है एग्जांपल के थ्रू. ठीक है, तो आपको दो वेरिएबल को असाइन करना होगा. वो आपकी चॉइस है कि आपको किसको असाइन करना है. ठीक है, सो हियर लेट मी असाइन. मैं फिर लेट मी असाइन फर्स्ट x3 as t and let me also assign x2 as s. हाँ, ये वेरिएबल अभी डिफरेंट चाहिए. इन डाउट अप टू दिस पार्ट कि दो वेरिएबल को आपको कंपलसरी असाइन करना है. एक को मैंने t असाइन किया तो ऑब्वियसली मैं सेकंड को yes असाइन करूंगा, एंड बोथ आर रियल नंबर्स. सो कैन आई फाइंड नाउ x1 फ्रॉम दिस? सो व्हाट इज माय x1? minus 2s plus t, sorry, minus t, correct na? Yes, sir. Where s and t belongs to r. Plus T. अभी समझ में आ रहा है? yes की जगह पे क्या लूँ अभी? t s ही ठीक है. अभी वो ना 5 जैसे दिखाई दे रहा है, पर ठीक है. करेक्ट? एनी डाउट इन दिस स्टेप? कुछ भी चेंज नहीं है. दो वेरिएबल को असाइन करना था. लेट मी असाइन x3, लेट मी असाइन x2.
अब यहाँ पे कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि एक ही इक्वेशन रहेगा हमेशा आपके पास, तो इनमें से किसी दो वेरिएबल को असाइन करना ही पड़ेगा। तो x3 को मैंने t असाइन किया, x2 को मैंने s असाइन किया। यहां तक आपको समझ में आ जाएगा, इसके आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो नाउ व्हाट इज माय वेक्टर? सो x इज इक्वल टू x1, x2, x3. If I put all these values here, you will get x1 क्या था? minus 2s minus t. Next is s, next is t. Clear? Clear? ये Yes, sir. हमेशा Yes, sir. ये जो स्टेप है ना, इसमें से आपको पहले यस के करस्पॉन्डिंग वेक्टर लिखना पड़ेगा। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, और प्लस करके ऐसे केसेस में आपको टी के करस्पॉन्डिंग भी वेक्टर लिखना पड़ेगा। सो एट द एंड आई हैव टू एक्सप्रेस दिस सिंगल वेक्टर इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यस एंड टी। फिर से सुनो, दो अगर वेरिएबल आते तो मतलब दो, अब इससे पहले टी वेरिएबल था, तो आप जो वेक्टर लिखते थे वो टी के करस्पॉन्डिंग ही था। आप टी इक्वल टू 1 पुट करके वो वेक्टर कैलकुलेट कर रहे थे ना? यस, in all Yes, our sir. previous Yes, example, sir. Yes, sir. we just put t equal to 1 and we'll get that vector. But now here we have two vectors, two unknowns, t and s. तो आपको t के करस्पॉन्डिंग भी कैलकुलेट करना होगा और आपको s के करस्पॉन्डिंग भी कैलकुलेट करना होगा। That is nothing but we have to express this vector in a linear combination of s and t. So can you tell me if I consider s common, जब आप s कॉमन लेते हो तो s की जगह पे 1 आ जाएगा, t की जगह पे 0 आएगा। ये वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है? लेट मी गिव दैट रिमार्क आल्सो। जब आप s कॉमन लेते हो, इसका मतलब s की जगह पे 1 पुट करना है और t की जगह पे 0 पुट करना है, या डायरेक्टली इस इक्वेशन में s इक्वल टू 1 पुट करो, t इक्वल टू 0 पुट करो, एक वेक्टर मिलेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अदर केस देन? s इज इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1। Sir, t equal to 1 and s equal to 0. ठीक है, you will get that second vector. Okay, so let me write it here. तो s कॉमन लेता हूं तो s की जगह पे 1 आता है, t की जगह पे 0. So -2 1 0, करेक्ट है। नेक्स्ट t की जगह पे 1 -1 0 1, करेक्ट लिखा ना मैंने ये। और आप चेक करो ये वेदर दिस सम इज इक्वल टू दिस और नॉट। -2s प्लस -t, यस t मिल रहा है कि नहीं? ये दोनों इक्वल है कि नहीं? चेक करो आप। Yes, sir. Yes, sir. सो व्हाट इज योर फाइनल कंक्लूजन? जब आप s एंड t ये दो वेरिएबल यूज करते हो, पहला वेक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना है? एमसीक्यू में ये फास्ट अप्रोच है। पहला वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है? s की जगह पे 1, t की जगह पे 0, डन। सेकंड वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है? रिवर्स करो, t की जगह पे 1, s इक्वल टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, फर्स्ट वेक्टर इज -2 1 0, second vector is -1 0 1. These two are the vectors, are eigenvectors corresponding to eigenvalue lambda is equal to 1. तो आप देखो यहां पे प्रीवियस एग्जांपल में, तो यहां पे आप चेक कर सकते हो, आपको पता है x इक्वल टू लैम्बडा x कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन दोनों वेक्टर के लिए जब आप लैम्बडा 1 लेते हो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यू कैन वेरीफाई दिस, ये 100% करेक्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लैम्बडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इस एग्जांपल में मुझे दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। सो व्हाट इज माय फाइनल कंक्लूजन? यस, बोलो। सर जो आपने सेकंड लास्ट स्टेप किया सर, उसको आपने स्प्लिट कैसे किया सर? आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे सर? यस, सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझा सर। ये ना हाँ, यस सर। यहाँ पे मेरे पास कितने एस और टी में कैसे स्प्लिट? हाँ, इसमें मेरे पास कितने अननोन्स है? 2 अननोन्स है। So at then I have दो to unknowns express, है, yes, sir. at then I have to express this single vector in the linear combination of s and t. तो पहले मैंने s और ब्रैकेट डाला था, t और ब्रैकेट डाला था। उसके बाद Yes. s के करस्पॉन्डिंग वेक्टर आपको कैसे लिखना है? s के करस्पॉन्डिंग वेक्टर लिखने के लिए s जो नंबर आप कॉमन लेते हो उस नंबर की जगह पे क्या आता है? इन जनरल 1 आता है ना? यस सर। जब आप कोई भी नंबर कॉमन लेते हो उस नंबर की जगह पे क्या आता है? 1 आता है ना। सो इफ आई टेक यस कॉमन, एस की जगह पे 1 आएगा और अदर वेरिएबल्स आर 0, अदर जो भी अननोन से वो 0। तो जब आप ये लिखते हो ना वेक्टर यस के करस्पॉन्डिंग, मैंने बस क्या किया था, एस की जगह पे 1 रखा है और टी की जगह पे 0 रखा है। तो ये 0, यहां पे 1, यहां पे 0, यू कैन सी दिस। ओके। प्लस टी, जब आप टी कॉमन लेते हो, टी की जगह पे 1, यस की जगह पे 0। और आप चेक करो ना, इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना, ये आ जाएगा, यस से मल्टीप्लाई करो, -2s,
t से मल्टीप्लाई करो माइनस टी, यू विल गेट दैट फर्स्ट वेक्टर. नेक्स्ट s into 1, yes, Yes, t into 0 0. नेक्स्ट s into 0 0, t into 1 is t. सेम मिल रहा है कि नहीं? तो मतलब जो Yes, sir, लॉजिक हमने same मिल रहा है. क्रिएट किया है वो करेक्ट ही है. ठीक है. yes sir. सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो. आप एक तो ये से याद रखो क्योंकि आपको ये वेरीफाई हो सकता है यहाँ पे, है ना, इजीली. यार ये सम एग्जैक्टली ये आ रही है कि नहीं, या आप इन जनरल ये रिजल्ट याद रखो. योर फर्स्ट वेक्टर, हाउ यू गेट योर फर्स्ट वेक्टर, इस इक्वेशन में बस s इक्वल टू 1 t इक्वल टू 0 डालो, फर्स्ट वेक्टर मिलेगा. सेम इक्वेशन में t इक्वल टू 1 s इक्वल टू 0 डालो, सेकंड वेक्टर मिलेगा. दैट आल्सो यू कैन यूज. सो एट द एंड here Yes, sir. there are two eigenvectors corresponding to lambda is equal to 1. ठीक है. तो अभी जो मेरा कंक्लूजन है वो क्या है? so when I have two distinct eigenvalues, in that case I may get, बोलो, I may get two eigenvectors or three eigenvectors. Three eigenvectors. This is my final conclusion. इसके बाहर नहीं आ सकता. Yes. Two distinct, this is all for 3x3 matrix, huh? The everything here I am considering only for 3x3 matrix. So 3x3 matrix में अगर दो distinct eigen values आते तो जितने distinct eigen values है ना उसके ऊपर ही eigen vectors का count होता है. Are you getting my point? जितने distinct eigen values आते हैं उसके ऊपर ही eigen vectors का count होता है. बोलो. Yes. सर अगर 2x2 मैट्रिक्स का केस होता सर तो उसमें सर ऐसा हो सकता है कि सर कि उसमें केवल मतलब एक ही डिस्टिंक्ट आने के चांसेस है ना, एक ही उसमें- डिस्टिंक्ट, यहाँ पे एक ही उसमें- डिस्टिंक्ट. हाँ हाँ, इसमें मैं कह रहा हूँ सर कि हाँ बोलो ये सर बोलो. सर मैं कह रहा हूँ सर अगर मान लो सर उसमें दोनों लैम्डा की वैल्यू सेम है सर तो उसमें क्या केस होगा सर? हाँ दोनों लैम्बडा सेम है मतलब कितने डिस्टिंक्ट है? एक ही डिस्टिंक्ट है ना. यस सर एक ही हाँ, डिस्टिंक्ट है. तो एक ही डिस्टिंक्ट है तो वहां पे आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा या तो दो आइगन वेक्टर मिलेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते हो. सो एट द एंड जो Yes, डिस्टिंक्ट का काउंट होता है ना, ग्रेटर इक्वल डिस्टिंक्ट का काउंट ही आपको आइगन वेक्टर्स मिलते हैं. अभी समझ में आ रहा है? जितने डिस्टिंक्ट है Yes, sir. उसके Yes, sir. आगे, अभी उसके आगे कहां तक जाओगे आप? ऑर्डर तक ही जाओगे ना, ऑर्डर के आगे तो पॉसिबल ही नहीं है. यस सर. तो अगर रिपीटेशन में आता है तो ग्रेटर इक्वल 1, 2/2 में, 3/3 में अगर एक वैल्यू रिपीटेशन में तो ग्रेटर इक्वल 2, अगर दो रिपीटेशन में तो ग्रेटर इक्वल 1. तो जैसे देखो यहाँ पे अगर 3/3 मैट्रिक्स है, तीनों आइगन वैल्यूज इक्वल है तो वहां पे आइगन वेक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. सो आइगन वेक्टर्स ग्रेटर इक्वल 1, यहाँ पे आइगन वेक्टर्स ग्रेटर इक्वल 2. 3 डिस्टिंक्ट तो 3 मिलेंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं है. क्लियर नाउ? यस सर. ओके. Yes, sir. सो ओनली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम Yes, माय sir. साइड. अभी जिसने मुझे एग्जांपल बोला था ना, कैन यू प्लीज गिव मी वन मोर एग्जांपल सो दैट आई कैन गिव इट एज अ सर होमवर्क. अगर इसी क्वेश्चन में रैंक 3 आ गई तो फिर रैंक 3 आ गई तो आपके पास रैंक 3 जब तभी आएगी जब आपके तीनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आएंगे. सॉरी कहां पे बोल रहे हो आप? पर रैंक 3 तो आ ही नहीं सकती ना नहीं क्योंकि कहां पे 3 बोल क्रॉस रहे हो? नहीं सिस्टम में नहीं, हम कंसीडर कर रहे हैं और इनफिनिट सिस्टम के लिए नहीं, पॉसिबल नहीं है. सिस्टम के आइगन वेक्टर्स का कैलकुलेशन करते समय. ओके अभी एक और रिजल्ट मैं आपको देता हूँ, अभी आगे जाके और रिजल्ट्स विल डिस्कस इन डिटेल. हाँ ये करेक्ट था Sir, आपका अगर कि यहाँ पे तीनों जो items सिस्टम है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो रैंक 3 कभी नहीं आएगी. इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो पार्ट सर छोड़ो. अगर तीनों आइगन वैल्यू सेम आ गई हाँ तो रैंक 1 3 आएगी. कैसे आ सकते हैं वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स? क्योंकि अगर तीनों वैल्यू सेम आ गई और आइगन वेक्टर 3 है तो रैंक 0 होनी चाहिए ना मैट्रिक्स की. अगर तीनों आइगन वैल्यू लेटेस्ट से 1 1 1 आते हैं, करेक्ट है? हाँ हाँ तो वहां पे हाँ. मैं कैलकुलेशन करूंगा 1 के करस्पॉन्डिंग, करेक्ट है? हाँ तो 1 के करस्पॉन्डिंग में फिर वो a माइनस लैम्बडा वो कंसिडर करूंगा. ओके तो वहां पे वो कैलकुलेशन जो आपका होगा वहां पे आपको हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा. अभी इनफाइनाइट हाँ. सॉल्यूशन के लिए आपको एट देन क्या इंश्योर करना है? लेस इक्वल 3, लेस देन 3, यही होता है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अभी मुझे ये बोलो 3/3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं? लेस देन 3 के लिए 2 आ सकती है ना, 1 भी आ सकती है ना. यस ठीक है तो ये सारे पॉसिबल केसेस वहां पे आ जाएंगे, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा. सर पर हाँ 3 आइगन वेक्टर्स नहीं होंगे सर. आ जाएंगे. अगर अभी आप मुझे ये बोलो. ओके
उस अगर 3 डिफरेंट आइगन वेक्टर रहे तो हाँ। उस केस में रैंक 0 आएगी मैट्रिक्स की, तभी हम 3 वैल्यूज असाइन कर पाएंगे तीन इक्वेशन के लिए, सॉरी yes 3 yes yes वेरिएबल्स yes के हाँ लिए। correct okay not possible for 3 by 3 मैट्रिक्स, क्योंकि 3 by 3 मैट्रिक्स में रैंक अभी आपके पास Yes, 1 sir, आ रही right, थी। sir. करेक्ट ना, करेक्ट स्टेटमेंट था उसका। रैंक अभी आपकी 1 आ रही है ना, रैंक 1 आ रही है मतलब आपके पास एक इक्वेशन आ रहा है, एक इक्वेशन आ रहा है तो आप 2 ही वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। ओके, तो 1 के करस्पॉन्डिंग अगर तीनों इक्वल आ भी जाते हैं तो उसका क्या कहना है, एक तो एक डिस्टिंक्ट मिलेगा, एक डिस्टिंक्ट कभी तभी आएगा व्हेन वी गेट 1 आइगन वेक्टर ओनली, जब ये डिफरेंस 1 आएगा मतलब रैंक 2 आएगी। So these are the only 2 possibilities. You are correct. So we will take one example directly ना, बाकी स्टूडेंट को इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। See, when all eigenvalues are equal, there are only 2 possibilities. Let me give you that. So rank of जो augmented matrix होगा वो एक तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, वही वो बोल रहा है। करेक्ट ना? Yes. यस सर। So when your rank is 1, you will get 2 eigenvectors ना? So 2, Yes. When Yes, your sir. rank is 2, Right. you will get only 1 eigenvector. I think this is your conclusion. 1. Yes. ओके गुड, एंड विल टेक वन एग्जांपल डायरेक्टली, देखते क्या आता है। बट यही करेक्ट है, यही करेक्ट है, इससे इसके पीछे आप नहीं जा सकते हो ना। हाँ, ये तभी पॉसिबल होगा अगर वो मैट्रिक्स से 0 आएगा, है ना। मैट्रिक्स से 0 आता है तो a माइनस लैम्बडा आई का जो मैट्रिक्स है अगर वो 0 आता है तो बोलो, ये पॉसिबल है ना, है या नहीं? ऑब्वियसली है ना। Yes, sir. 0. हाँ, Rank तो is मिलेंगे ना आपको। अभी इसका मतलब इक्वेशन एक भी नहीं है, इक्वेशन कितने? 0। 0. Yes, sir. हाँ 0 equation. So 3 values of. okay, so I think okay, so we'll stop here today. I have one immediate lecture at 10 o'clock. Okay, but we'll discuss this part in next lecture also, and we'll take that example also. ठीक है? So this is possible. Okay, so we'll take this part in next lecture. Okay, but good observation. Okay, good observation. Okay, we'll stop here today. I have one immediate lecture. सर मींस हाँ बोलो सर बोलो। मतलब सर अगर जब भले ही तीनों सेम हो या फिर सर दो सेम आइगन वैल्यूज हो सर, हाँ। पॉसिबिलिटी सर हमेशा 2 या फिर 3 ही होंगी, है ना? करेक्ट, उसके आगे रहेगी, डिस्टिंक्ट के आगे पॉसिबिलिटी रहेगी अप टू द ऑर्डर। यस सर। Okay, यस सर। Okay, so I think we'll stop here today. We'll continue this discussion in next lecture also. Okay, I will share Thank you, sir. this whole material with you. Okay, Thank you, sir. thank you all. पूजा, अरे पूजा